Hello and assalamu alaikum everyone. I welcome you all on my YouTube channel. Yes, I'm back after a very long time and sorry for the gap. Well, so from this video I'm going to start a series of Microsoft Excel from very basic. As you all know, I have explained the advanced features of Excel in my previous videos. So if you missed, so you can check. I'll put link in my description box. So in this video I'm going to explain from very basic. Okay, so as you can see on my screen, I have already opened MS Excel, right? So I will explain you very small points also which can be useful for your competitive exams as well. And if you are a student, you are studying in a school, so it is going to very useful to you. So first thing is, as you see, this is sheet 1 I have opened, and from here you can create more than one sheets as it is up to you. So as you have to know what is row and what is column in this. So the row is this 3 or 2 or 1. You can see now I am clicking. So this line is known as row, and the upper part जहाँ पे आपको दिख रहा होगा A लिखा हुआ है, B, C, this is the columns. Okay, तो if any case you want to select your row or a column, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे कि आपको row select करनी है या column select करना है, तो how will you select? ये तो आपका सिंगल एक सेल है. दिस द नेम ऑफ दिस सेल इज A1, एंड ये जो आपका नेम बॉक्स है ना, यहाँ पे आपको सेल का नेम भी दिख जाएगा जिसको आप सेल रेफरेंस भी बोल सकते हो. ओके, तो ये तो मेरे कर्सर को मैं जहाँ पे प्लेस करूँ तो मेरा तो बस एक सेल ही सिलेक्ट हो रहा है ना. हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉपर रो? जैसे मुझे ये जो वन रो दिख रहा है ना, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी? तो सिंपल है कि यू हैव टू क्लिक ऑन द रो हेडिंग. अगर आपको रो सिलेक्ट करना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन रो हेडिंग. लाइक द रो हेडिंग ऑफ दिस रो इज 1. तो आई हैव क्लिक्ड ना, then you can see it is now selected, right? And similarly, if I want to select a column, so I have to click on the column heading. This is my column heading. So now my column is selected. So in this way you can select a proper row and proper column. And in case if you need to select entire worksheet, this is a worksheet, right? So if you feel that you have to what select entire worksheet, then there are two ways. First one is a shortcut key, like you have to press Ctrl plus A simultaneously, okay, with the help of keyboard. So now I'm pressing Ctrl plus A, and you can see my whole worksheet is selected. Okay, so this was the one way, and the another way is I'm going to tell you. You can see here top left corner, just look at my arrow where I am moving cursor. This is the uh, this button is known as the select all button. So when you will click here na, then also your entire worksheet will be selected. So these are the ways how to select a row or a column, or how to select an entire worksheet. Okay, one more thing, like you have selected B column and you want to select C column also as well as D, then how will you select? जैसे कि आपको एडजेसेंट कॉलम्स को भी सिलेक्ट करने हैं, तो आप कैसे करोगे? सिंपल, बस जैसे यहाँ पे आपने बी को सिलेक्ट करा है ना, नाउ यू हैव टू, अगर आप कुछ भी प्रेस नहीं करोगे, आपने बी सिलेक्ट किया और आप सोचोगे मैं सी पे करूंगी तो मेरा सी भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो नहीं, आपका जो बी था ना वो डी सिलेक्ट हो गया और सी सिलेक्ट हो गया. लेकिन आपको क्या चाहिए कि आपको बी भी सिलेक्टेड चाहिए एंड सी भी सिलेक्टेड चाहिए. सो इन दिस केस you have to first you have to click on the column heading where you want to select, and then you have to press shift key with the help of your keyboard. So now I'm going to show you. I have pressed shift key, and now if I will click on C or D, जो भी adjacent columns मुझे दिख रहे हैं तो वो मेरा साथ select होता जा रहा है, right? As you can see, तो मेरा ये अभी सारा selected है. ऐसा नहीं हुआ कि मैंने C को select किया तो मेरा B D select हो गया. Now these 1, 2, 3, 4, 5 columns are selected.
Okay, so similarly you can select rows also the same way. With the help of shift key you can select adjacent rows and adjacent columns. Okay, so this was the very basic, but as I told you, I will explain you from very basic beginning, though I thought it might be useful for you. Okay, now another point which is very interesting and you all must feel to know how to do that. What is that? How to enter numbers as a text. Suppose if you want to type roll number और द पिन कोड और टेलीफोन नंबर, तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले वहां पे जीरो लगाना होता है ना। जैसे कि या फिर कोई किसी अदर कंट्री अदर स्टेट का नंबर है, अदर कंट्री का नंबर है ज़्यादातर, तो वहाँ पे ज़ीरो लग के आता है। तो अगर आप कोई एक डेटाबेस बना रहे हो और वहाँ पे आपको अगर फ़ोन नंबर में ज़ीरो लगाना है या रोल नंबर में ज़ीरो लगाना है, मतलब बीच मिडिल में नहीं, मैं पहले की ज़ीरो की बात की, जैसे कि 01481, ओके यू कैन सी आई हैव टाइप्ड। तो इन दिस वे, यस प्लीज इग्नोर द नॉइज, बैकग्राउंड में से जो भी आ रही है प्लीज इग्नोर दैट। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू प्रॉपरली विद ऑल दीज। तो आई वाज सेइंग कि अगर आपको पहले जीरो लगाने हैं ना, तो देखो मैंने फिर से टाइप करती हूँ मैं 0145, चलो मैंने टाइप किया, अब मैं इंटर करूंगी ना तो मेरा जीरो जो लगा था ना वो गायब हो जाएगा, ये डिसअपीयर हो गया। लेकिन मुझे जीरो चाहिए वहां पे, तो मैं इसका कैसे मैं डाल सकती हूँ, मतलब ये जो मुझे आगे में जीरो लगाने थे तो वो तो गायब हो जा रहे हैं। तो सच एज 01481 और 0145, तो what actually is what doing, इट इज ड्रॉपिंग द लीडिंग जीरो, है ना। जो हमारा जो जीरो हो रहा था उसको वो ड्रॉप कर रहा है। सो टू प्रिजर्व द लीडिंग जीरो, what you have to do, you just have to do very simple task, that is place a single apostrophe, you know apostrophe। अब मैं टाइप करूंगी 01481, नाउ लेट्स सी। मैंने अभी देखो इंटर टाइप किया तो मेरा जीरो है और यहाँ पे ये कुछ ग्रीन ग्रीन सा आ गया, व्हाट इज दिस। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके भी देख सकते हो। सी, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने और अभी जो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इग्नोर एरर पे भी करूंगी तो वो मेरा जो ग्रीन मार्क है वो हट जाएगा। और कन्वर्ट टू नंबर, नो, मुझे तो नंबर को स्टोर टेक्स्ट की जैसे करना, तो नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, तो आई विल क्लिक ऑन दिस। वेट, या इग्नोर एरर, चलो। तो ये इस तरह से हो गया। अभी इस फॉर्मेट से आप अपने नंबर को भी टेक्स्ट की तरह इंटर कर सकते हो। सो दिस वाज द वे। नेक्स्ट थिंग that I think it is also important, how to enter date and time. Okay, so suppose what date is today? 27 of October 2021. All right. So there are also another more than one ways to type date. Simply like 27 October. So I will type 27 with the help of hyphen or slash. I can give na a proper date format. तो चलो मैं पहले hyphen ही देती हूँ. Then 10 and then 21. देन आई विल क्लिक ऑन इंटर ना, देखो ये अपने आप ही इसको डेट वाले फॉर्मेट में लेके 2021 इन्होंने कर मतलब एक्सेल ने कर दिया। आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो 27 एंड देन स्लैश 10/21, it will be also like a proper date format। or there is one more way, 27 oct means October 21, this is also अपने आप ही इन्होंने हाइफन लेके इसको प्रॉपर डेट शो कर दिया। राइट, सो एक्सेल रिकॉग्नाइजेज एंड सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ डेट फॉर्मेट्स, whichever you feel easy for you, you can just do that। So to display the entered date in different format, select the cell containing the date, click on the format drop down button in the sales group, where, let me show you। Okay, here is the sales group and here is the format, so you have to click here and then you can see
there are more than one options, and now you have to click on format cell option. Where is that? Yes, here फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन। हाँ, तो अभी इंटर करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स मुझे अपीयर हो गया यहाँ पे फॉर्मेट सेल का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डेट भी दिख रहा है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, so many options are here. So choose any desired format of date by clicking on the date option in the category list on the number tab. Okay, this is the number tab. These all are tab, number, alignment, font, these all are tabs. So where I have clicked now on number tab and on number tab date option. देखो अभी मैंने यहाँ पे जब सिलेक्ट किया तो ये कुछ ऑप्शंस मुझे और दिख रहे हैं। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अलग अलग फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकती हूँ, मतलब कि मुझे किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए अपने डेट को एंटर करने के लिए। यहाँ पे एक ये है कि पहले ईयर लिखा है, देन डेट है, हमारा मंथ है, उसके बाद पहले मतलब पहले ईयर जो हमारा नॉर्मली होता है अमेरिकन स्टाइल कि पहले ईयर है फिर मंथ है फिर डेट है, फिर यहाँ पे भी है। तो आपको जैसा वाला चाहिए यू कैन सिलेक्ट फॉर्मेट फ्रॉम हियर और यू कैन सी मोर बाय दिस। तो मैं सिंपली ये वाला सिलेक्ट करती हूँ एंड आई विल क्लिक ओके। तो मैंने तो पहले सेल ही नहीं सिलेक्ट करा था ना, चलो मैंने ये सेल सिलेक्ट किया। आई एम शोइंग यू अगेन, जहाँ पे आपको करना है पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, then I have to click on the format option in the cell group, then format cells option, then this dialog box will appear on number tab, date which is already clicked, and I will click this format and then I will click OK. So my this date is now changed. You can see पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले डेट डाला था, फिर मंथ डाला था, फिर ईयर डाला था, और इसको अभी जो मैंने सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट चेंज किया वो उस फॉर्मेट में आ गया। सो दिस इज द वे यू कैन इंटर डेट एंड दिस इज द सेम वे टू इंटर टाइम ऑल्सो। Okay, so similarly you can choose different time format by clicking on the time option in category list. Okay, so chalo let me show you once again format cell, and where is the time? Yes, here it is time. तो यहाँ से आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला किया। ओके, तो अभी तो मैंने कोई टाइम इंटर ही नहीं किया था, सपोज इट इज 18:20। ओके, अब मैं यहाँ पे जाती हूँ फॉर्मेट में और फिर मैं यहाँ पे ये वाला टाइम को लेके मैं आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, देन आई क्लिक ओके। तो ये तो पहले से उसी फॉर्मेट में है, कुछ अलग करना होगा जिससे आपको चेंजेस दिखे, राइट। तो लेट मी सी, 1:30 PM, ये वाला सही है, 6:20 PM आ गया ना। पहले ये मेरा 24 आवर्स वाले इसमें था, अभी ये 12 आवर्स वाले फॉर्मेट में आ गया, right? So this is the way you can enter date and time, and also there are varieties of formats you can select. Okay, so now there are another things also, like how to change cell contents. Suppose मैंने इस सेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक दिस इज द सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स यू कैन सी ना, दिस इज कॉल्ड सेल, एंड सेल नेम is you have to identify first by row and sorry column and then row, like this cell is I5, the name of this cell is I5 and this is G6, and also in name box it is displayed, I mean displaying। okay, तो अभी अगर मुझे सेल कंटेंट में कुछ रिप्लेस करना है या फिर एडिट करना है तो कैसे करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 01481, तो मुझे रिप्लेस करना होगा ना, तो मैं जो लिखना है मैं अभी डायरेक्ट जैसे लिख देती हूँ वी, तो वो रिप्लेस हो गया, एंटर करूंगी तो अभी वहां पे 01481 जो था वो रिप्लेस होके वी लिखा गया, राइट। और अगर मुझे एडिट करना हुआ तो अगर मुझे वी को यहाँ पे इसमें कुछ और ऐड करना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, सी मैंने डबल क्लिक किया तो वो डिलीट नहीं हुआ, वरना वो क्या होता हट जाता और रिप्लेस हो जाता। अब मैं स्पेस बार देकर क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, वी आर
इंडियन, राइट। तो यहाँ पे अभी क्या, ये एडिट मोड था। तो आप एक चीज गौर करना, व्हेन आई विल क्लिक हियर ना, तो हमारे जो ये फॉर्मूला बार है ना, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, यहाँ पे भी ये लिखा रहा है जो भी मैं सेल में लिख रही हूँ, यू कैन सी ये फॉर्मूला बार में लिखा रहा है, राइट। एंड यहाँ पे दो चीज होती है, एक तो ये हमारा ये एफ एक्स जो है वो फंक्शन इंटर करने के लिए है, एंड दिस इज ऑफ कैंसल एंड दिस ऑफ इंटर। तो यहाँ पे भी आप ना फॉर्मूला बार में भी लिख करके यहाँ पे भी आप कुछ इंटर एडिट कर सकते हो, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट, अगर आप इंटर मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना टिक वाला साइन, इसको कर दोगे तो इंडियंस मैंने किया, और मैं अगर ये करूँगी तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, अभी ये इंडियंस हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती ना, सपोज मैं यहाँ पे फिर से करके मैं ये कैंसिल कर दूँ ना, तो ये हट जाएगा, ओके। तो वो वहाँ पे दो बटन्स होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखो, अगर आपको फ़ील हो रहा है ना कि मेरे इतने से सेल में ये नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर एच वाले सेल में लिखूंगी तो अभी आपका इंडियन का तो बस आईएनडी दिख रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा पूरा। तो इस केस में क्या होता है कि मुझे मुझे ये सेल की साइज को इंक्रीज करनी है, तो ऐसा साइन बनेगा, आपको बस एकदम इसके एज पे जाके पॉइंट करना है कर्सर को, एंड देन आपको क्या करना है, माउस से ड्रैग करके इसको जितना आपको चाहिए उतना इंक्रीज कर दो, आपका सेल बड़ा हो जाएगा। तो ये कॉलम बड़ा हुआ, कॉलम वाला सेल, एंड यहाँ से आप रो का भी कर सकते हो सेम इस तरह से। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं कि आपको एक्सेल यूज करने में तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप कोई डेटाबेस बनाने बैठोगे तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें you must feel to know. So today I have explained you how to select the selection part of row, column, entire worksheet, adjacent rows and columns, right? And how to enter number as text, how to enter date and time with different formats, and the cell contents, changing cell contents like replacing or edit mode. Okay. एज यू कैन सी वन मोर थिंग, इवन आई क्लिक डबल क्लिक ना, तो यहाँ पे एक एडिट मोड भी आ जाता है। यहाँ पे देखो ये अभी एडिट मोड में है, आपको इस चीज से बस जानकारी के लिए आई एम सेइंग कि जब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो मैंने बोला ना कि डबल क्लिक करोगे तो आप कुछ एडिट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये एडिट में लिखा जाता है, और जब आप कर्सर को यहाँ पॉइंट करोगे तो यहाँ लिखा के आ रहा है इन एडिट मोड। तो अभी जो हमारा ये वर्कशीट है ना, ये एडिट मोड में है, राइट। आप फॉर्मूला बार में भी जाके यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ से एंटर कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो, ओके। So and yes, you have to know that the edit mode is indicated on the left side of the status bar. What is this? This is status bar, right? तो क्योंकि अभी तो आपको ऐसे पता चल रहा है कि अच्छा हाँ ये लेफ्ट साइड में कॉर्नर में था। अगर आपसे कोई पूछते, जैसे कि क्लासरूम में अगर आपसे टीचर पूछे, तो यू हैव टू से कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार एडिट मोड इज अवेलेबल। तो ये आपका एडिट मोड होता है, और जब जो आपको चेंजेस करना है वो करके आप इंटर करोगे तो वो आपका ऑलरेडी एडिट हो जाएगा, और जो करंट आपने कंटेंट डाले होंगे वो वहाँ पे आपको विजिबल होगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे 145 लिखा हुआ है, और मुझे इसको जैसे आपको दिख रहा होगा अनडू एंड रीडू, तो मुझे लगता है सभी को पता होगा कि मैंने क्या किया है। जैसे मैंने जो किया है उस चीज़ को मुझे वापस से लाना, मतलब अगर मुझे लगा कि नहीं मेरे से मिस्टेक हो गई और मुझे पहले जैसा ही चीज़ जैसा था, तो मैं अनडू का यूज़ करके कर सकती हूँ, और उसी का जस्ट रिवर्स होता है रीडू। तो एक तो यहाँ पे जो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है ना, यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, ये अनडू का साइन है और ये आपके रीडू का है, और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं कि आपको कैसे मतलब चाहिए, राइट। तो अनडू करोगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा, जैसे मैंने अनडू किया, देखो पहले मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट करा था ना, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ रीडू मतलब वापस से उस पे चले जाना। और इसके क्या कहती हूँ मैं, साइन आई मीन शॉर्टकट कीज भी होते हैं, कंट्रोल प्लस जेड फॉर अनडू एंड कंट्रोल प्लस वाई फॉर रीडू फीचर।
तो ये अभी तो मैंने कोई डेटाबेस बनाया नहीं है, तो आपको उतना समझ नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। तो that's all for today's lecture. In the next lecture, I will explain you in detail using of undo and redo feature and how to insert cell, column and rows. मतलब बीच में सेल और कैसे एंटर करते हैं अगर मुझे ज़रूरत है, या रोज कैसे एंटर करेंगे, या कॉलम्स कैसे एंटर करेंगे, एंड फिर अगर कर दिया तो फिर उसको डिलीट कैसे करेंगे, है ना। और हाउ टू चेंज द रो हाइट और कॉलम विथ कॉपिंग एंड मूविंग, सो देयर आर more very options. So I will explain you in the coming videos. I hope you all, I think you all will support me, and if I get the very positive response of you, so I'll make sure to not too late, and I'll upload videos within, I mean, very soon. Okay, so that's all. If you like my video, please let me know in the comment section how you like it. I mean, your honest feedback, and hit the bell icon. Thank you.